एपीजीसी के बारे में हम सभी मेंबर तो अच्छी तरह वाकिफ हैं। बस एक शॉर्ट ऑफ ब्रीफिंग हम अपने स्पीकर साहब को भी देना चाहते हैं, जो हमारे न्यूली ज्वाइंट मेंबर हैं, उनके लिए भी। Our Association of Professional Graduate Civil Engineers was formed in year 2005 as a non-profit and non-political association of professional graduate and architectural engineers registered under the Society Registration Act. With the gradual establishment of APGC Center in the state of Assam, Bihar, Maharashtra, and Uttarakhand, APGC UP now has transformed into APGC India and presently having 41 city chapter across the country. With these city chapter, APGC is expanding at the fairly fast pace of give common platform to all the civil and architectural engineers who are into design, construction, and allied activities. APGC took the issue of competency of engineer in professional practice in light of NBC 2005, presently known as the NBC 2016, and for making the National Building Code mandatory in the UP state. And APGC organized many national and regional level seminar workshop jointly with the concerned institution and department like BIS, Urban Planning Department, and with the different stakeholder on the same to sensitize the policy makers. We have some good government order for the benefit of practicing engineers in here UP for making the competency of civil and architectural engineer accordance with the National Building Code, and for exemption of the practicing graduate civil and architectural engineers from the registration of any authority or department connected with the building construction. Another GO we have for making provision of National Building Code mandatory in the state of Uttar Pradesh. Another GO for empowerment of civil and architectural engineer to submit all plan and information connected with the building permit in online building plan approval system here in Uttar Pradesh. Some of other achievement of our APGC association is the largest association and only registered body of professional graduate civil engineer and architectural engineers working in many states with 41 city chapter pan India. Only Indian engineering body helping its member to connect, interact, to update and upgrade skill and improve the professionally by providing national level platform. APGC is a part of the national level team working for the formulation of Engineers Bill and enactment of Engineers Act. The motto of our association to create and provide common platform to all the professional graduate civil and architectural engineer in the country to get recognition of architectural and civil engineers in government department, public sector and society at large. To spread awareness about the need and urgency of the Engineers Act to the make all out effort for its enactment, to develop professional ethics amongst members, to spread awareness about the social responsibility of the member in the society, and to upgrade and update the knowledge and practice of architecture and civil engineers. And not least, this is the last to inspire the young generation to opt the civil engineering as a career and profession. So our city center is now 41, which is Agra, Aligarh, Aurangabad, Ayodhya, Ajamgarh, Balia, Bareilly, Basti, Bhagalpur, Chandauli, Chhapra, Darbhanga, Devariya, Dehradun, Delhi, Dibrugarh, Gazipur, Gopalganj, Gorakhpur, Guwahati, Haldwani, Jhansi, Kanpur, Kotdwar, Lakhimpur Kheri, Lucknow, Madhubani, Mathura, Meerut, Mirzapur, Muradabad, Motihari, Muzaffarpur, NCR, UP, Patna,
Pratapgarh, Prayagraj, Raebareli, Samastipur, Siwan, and here Varanasi as a headquarter. Thank you all, and over to Rahman sir. Hello. जी, संजय का ब्रीफ इंट्रो, आई थिंक इट वाज मोर फॉर आवर से ऑलरेडी गेस्ट स्पीकर। बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं वो तो एपीजीसी से वाकिफ हैं। और आज का जो ये हमारी सीरीज का टेक्निकल सीरीज का सेकंड वेबिनार है। पहला जियो टेक्निकल एनालिसिस पे था, इंपॉर्टेंस ऑफ जियो टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा हमारा जो है वो फायर प्लानिंग पे है, और बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ड्यूरिंग एजुकेशन या ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग उतना स्पेशलाइज नहीं पढ़ाया जा पाता है। जब हम लोग अपने टाइम की बात बता रहे हैं, जब हम लोग 30-35 साल पहले पास आउट हुए थे, तो उतना स्पेसिफिक्स नहीं होता है जितना आज आपको गेस्ट स्पीकर से आपको उसकी माइक्रो और मैक्रो लेवल की प्लानिंग के बारे में जितना आइडिया मिलेगा। रिसेंटली कानपुर में 3 महीने पहले एक फायर एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें 6 बड़ी मार्केट्स, दे वर ऑल गटेड। तो फाइनली इट वाज डिसाइडेड टू पुल ऑल 6 मार्केट्स डाउन। तो ये बहुत बड़ी फायर थी। और जैसा कि होता है कि माइक्रो लेवल पे हम लोगों का इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। और अगर शुरू से ही अगर स्पेशली कमर्शियल बिल्डिंग्स में प्लानिंग प्रॉपर हो, सेटबैक्स हो, फायर सेफ्टी के लिए प्रोविजन हो, अंडरग्राउंड यूजी टैंक्स हो, तो थोड़ा सा फायर को कंटेन करना आसान होता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाली बात है। और अदरवाइज अगर वो बढ़ जाती है तो पानी हो, ये जो हम लोग अभी जैसे फ्लैश फ्लड्स देख रहे हैं, आग हो, इनको कंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त। शॉर्टकमिंग हमारी प्लानिंग में भी रहती है, इम्प्लीमेंटेशन में भी रहती है, और जो सेफ्टी मैकेनिज्म है उसमें भी रहती है। तो हम लोगों का सबका इंटरेस्ट ये हो कि किस तरह से इसको हम लोग बेटर कर सकें। और क्योंकि हमारे गेस्ट स्पीकर उस संबंधित विभाग से हैं, तो उनसे भी हम लोग ये निवेदन करेंगे कि आगे वो भी अपने डिपार्टमेंट्स में थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में प्रोएक्टिव करें। कि जैसे एक फायर एक्सीडेंट लंदन में हुआ, और उसके बाद उन्होंने एक सर्टेन कैटेगरी के ग्लेजिंग मटेरियल्स को बैन कर दिया। तो इस तरह का आई थिंक प्रोएक्टिव एक्शन हम लोग यहाँ भी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ तो फॉरेन मटेरियल्स की जब डंपिंग होती है, तो जब बाहर उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है तो इंडिया जैसे मार्केट में आती है, और फिर वो डेलिबरेटली यूज होने लगती है। आज एसीपी इतना ज्यादा यूज हो रहा है, इतना कि उसमें सर्टेन ग्रेड जो है वो दे ऐड टू फायर। तो ये सब चीजें बहुत खतरनाक हैं। तो हम लोग अपने गेस्ट स्पीकर को सुने, और उसके बीच में हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि पहले गेस्ट स्पीकर अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। इस बीच में जिसको क्वेश्चन लिखना हो वो चैट पे लिख ले, और अदरवाइज उनका कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखेंगे। क्योंकि अगर शुरू में भी होता रहा तो इंटरप्शन होगा, तो मजा नहीं आएगा। तो आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल guest Vivek ji, please take the dice now and start with your deliberations. Thank you. Thank you very much, Rahman ji. Thank you very much. Shall we start? So फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपसे बात करने की, डिस्कस करने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पॉइंट पे आता हूँ मैं अपने। देखिए, फायर सेफ्टी इम्पोर्टेंस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बिल्डिंग्स के लिए। और हर एक स्टेट, अगर यूपी स्टेट हो या दिल्ली स्टेट हो या एमपी हो, सभी ने अपने फायर सर्विस एक्ट बनाए हुए हैं फायर सेफ्टी के लिए। पहले क्या होता था, फायर सर्विस एक्ट बनते थे, सिर्फ हम लोग फायर फाइटिंग का ज्यादातर काम करते थे। लेकिन राइट नाउ जब से डिजास्टर मैनेजमेंट भी ऐड हुआ है, इसमें सेफ्टी एस्पेक्ट ज्यादा ऐड होने शुरू हुए। जैसे अगर हमारा अभी रिसेंटली जो एक्ट आया है 2022 में, अग्निशमन एंड आपात सेवा, मतलब फायर इमरजेंसी, इमरजेंसी भी जुड़ गया है इसके अंदर। और पहले सिर्फ क्या होता था कि फायर फाइटिंग के लिए एक डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट हुआ। अगर आप 1954 से देखें तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो उससे आग लगती थी या
कहीं भी हानि होती थी तो फायर फाइटिंग का उन्हीं शहरों में किया गया था डेवलपमेंट, और सिर्फ फायर फाइटिंग पर्पज से। लेकिन अब रिक्वायरमेंट है प्रिवेंशन पार्ट की, क्योंकि दिन पे दिन कंस्ट्रक्शन वर्क ज्यादा हो रहा है। आप कंस्ट्रक्शन की बात के अलावा अगर आप देखें तो हर रोड के नीचे से गैस की लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, डेली रोड्स पर बड़े बड़े टैंकर्स जो कि मतलब H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड्स, इथिलीन, प्रोपिलीन, कितनी तरह की गैसेस जो फ्लेमेबल है हाईली, वो सड़क पर जा रही है। और सड़क पे जो स्पीड हो गई गाड़ियों की, आप जानते हैं 100 से कम तो अब गाड़ियां चलती ही नहीं। अगर इस कंडीशन में उन गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो एक बहुत बड़ी फायर और एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। तो फायर सर्विस अब एक मेन फ्रेम में है और मेन इंपॉर्टेंस में है। मैं स्टार्ट करूंगा इसे अब बिल्डिंग से हम लोग करते हैं। बिल्डिंग्स में नेशनल बिल्डिंग को नेशनल लेवल पे बनाया गया है, कोड है, जिसे जो स्टेट के एक्ट्स हैं, जैसे फायर सर्विस एक्ट यहाँ का है यूपी का, पहले 2005 में एक्ट आया था, ये फायर प्रिवेंशन फायर सेफ्टी एक्ट 2005। उसमें कहा गया था, अगर धारा 3 को हम पढ़ें, कि ये एक्ट 15 मीटर से ऊपर की बिल्डिंगों पर लागू था। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि कभी भी कोई चीज जब इम्प्लीमेंट करने की इसके लिए सोचें, अब उसका एक लीगल एस्पेक्ट भी हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमें आवश्यक क्यों है। सिर्फ किसी के कहने पे आप फायर की एनओसी के लिए अप्लाई कर देते हैं, वो मैं कहूँगा वो गलत है। सबसे पहले उसके बैकग्राउंड में जाइए कि ये फायर एनओसी आज हमें आवश्यक है तो किसकी वजह से, तो उसके पीछे एक्ट और नियम होते हैं सरकार के। तो ये एनओसी की आवश्यकता थी। लेकिन ये 2005 में फायर प्रिवेंशन फायर सेफ्टी एक्ट आया, जिसमें कहा गया कि 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग्स के लिए फायर डिपार्टमेंट कुछ कार्रवाइयां कर सकता है। वो भी एनओसी के लिए नहीं था, कार्रवाई करने के लिए था बिल्डिंग्स पर। एनओसी की प्रक्रिया के बारे में कोई सर्टेन प्रोसीजर नहीं था। उसी चीज को एक्ट को लेते हुए जो बिल्डिंग बायलॉज है 2008 में या 2005 में, जो बिल्डिंग बायलॉज आया यूपी के अंदर, जो इस शहरों के हिसाब से 18 शहरों में बिल्डिंग बायलॉज लगता है यूपी में, और बाकी में नगर पालिका है, नगर पालिका के अपने नॉर्म्स होते हैं। फिर उसी को धारा को इस्तेमाल करते उन्होंने कहा कि 500 वर्ग मीटर को और ऐड कर दिया, 15 मीटर से ज्यादा हाइट और 500 वर्ग मीटर से कवर्ड एरिया। किसी अगर एक फ्लोर का कवर्ड एरिया 500 वर्ग मीटर से ज्यादा होता है तो उसको भी फायर की एनओसी लेने की आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद एक रिट हुई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से डिसीजन आया कि 2005 से पहले की बिल्डिंगों के लिए क्या नॉर्म्स आ गए, पुरानी बिल्डिंगों को एनओसी मिलना डिफिकल्ट हो गया। तो वो कुछ लोग हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट से डिसीजन आया, आने के बाद गवर्नमेंट डिसाइड किया कि 2005 से पहले की बिल्डिंग्स में 3 पॉइंट को छोड़ते हुए 17 पॉइंट में आपकी सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ था, ये धारा 4 फायर प्रिवेंशन फायर सेफ्टी एक्ट की धारा 4 में लिखा हुआ है। सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स वहां दिए हुए हैं कि हमको फायर सर्विस को बिल्डिंग को चेक करते हो क्या क्या पॉइंट्स चेक करने। जैसे हम लोग कभी लैंड यूज चेक नहीं करते, हम लोग FAR चेक नहीं करेंगे। हम सर्टेन पॉइंट्स क्या है, 20 पॉइंट्स, जैसे एक्सेस, सेटबैक, फायर एग्जिट, कंपार्टमेंटेशन, प्रेशराइजेशन। फिर उसके बाद ये तो आपका प्रिवेंशन पार्ट आ गया बिल्डिंग का। इसके बाद फायर इक्विपमेंट में एक्सटिंग्विशर्स, हाउस रील, वाटर टैंक्स, अप ग्राउंड हो या अबव ग्राउंड हो। उसके अलावा हाइड्रेंट सिस्टम, स्प्रिंकलर्स, डिटेक्शंस, इसमें भी कैटेगराइज कर दिया था कि हर सभी बिल्डिंगों के लिए आवश्यक नहीं है। जितना जैसा कि एनबीसी में टेबल 7 या टेबल 23 में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग ही, बाकी को हम लिख देते नॉट एप्लीकेबल, और जिसमें आवश्यक होता था उसको उस हिसाब से हम चेक करते थे। लेकिन अब 2016 में फिर एनबीसी आया, नेशनल बिल्डिंग कोड। 2005 में कैटेगराइजेशन नहीं था बिल्डिंग्स का कि किन बिल्डिंगों पे एनबीसी लागू है। लेकिन 2016 की जो एनबीसी आई उसमें उसे जो उसका क्लॉज है 1.2, उसमें साफ साफ लिखा गया कि ये 2016 बिल्डिंग जो एनबीसी किन बिल्डिंगों पर लागू है। तो उसमें लिखा गया ये बिल्डिंग एनबीसी 2016 वाली जो एनबीसी है, ये 500 वर्ग मीटर से ज्यादा कवर्ड एरिया की बिल्डिंग्स या 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग्स की लागू रहेगी। फिर उसमें और क्लॉज दे दिए कि अगर कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, जैसे हॉस्पिटल है, अगर उसकी 9 मीटर हाइट है तो 9 मीटर से ऊपर के लिए एप्लीकेबल है।
स्कूल्स के लिए भी उन्होंने हाइट दे दी 9 मीटर। या फिर असेंबली बिल्डिंग, अगर किसी का कोई होटल है लेकिन कवर्ड एरिया सिर्फ 400 वर्ग मीटर है, लेकिन उसका एक हॉल है 300 वर्ग मीटर का, इंसिडेंटल अगर असेंबली है उसमें 300 वर्ग मीटर की, तो भी उसको रिक्वायरमेंट होगी। और एक और क्लॉज जोड़ा उन्होंने कि 2 बेसमेंट अगर है किसी बिल्डिंग में, इट रेस्पेक्टिव ऑफ मींस एरिया, तो भी फायर की एनओसी पे के लिए ये नॉर्म्स एनबीसी लागू होती है। तो 2 चीज हो गई, एक तो एक्ट के थ्रू गाइड हुआ, एक्ट ने कहा कि एनबीसी हमें फॉलो करना है, और बिल्डिंग बाय लॉज, इन 3 का एक संगम मिलके कोई चीज बनी, तो इन तीनों को मिला के हम लोग हमेशा बिल्डिंग को चेक करते हैं। लेकिन आप लीगल एस्पेक्ट देखे जाए तो हमारे लिए वो 15 मीटर से ऊपर ही हम लोग सिर्फ कार्रवाई कर सकते थे 2016 में। अब जब ये 20 पॉइंट्स में आया, अब आप अगर देखें तो कुछ जो जितनी अगर हम पुरानी बिल्डिंगें देखें, दिल्ली की अगर आग देखें, या यूपी में बहुत सारी आग लगी, या आप कलकत्ता में वो सूरत में देखें जो कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, ये सभी बिल्डिंग्स 15 मीटर से नीचे की थी, और शायद उनका कवर्ड एरिया भी मेरे हिसाब से वो 500 वर्ग मीटर से कम ही था। तो इससे इन बिल्डिंगों के लिए हमारे पास नॉर्म्स ही नहीं थे, और जितनी भी बिल्डिंग ज्यादा हादसे हुए वो सभी छोटी बिल्डिंगों में हुए। फिर उसके बाद कुछ शासनादेश आए हमारे पास, जो शासन ने हमें शासनादेश बनाया कि आपको अब 15 मीटर से नीचे की बिल्डिंगों के लिए भी एनओसी देने की आवश्यकता होगी और चेक करना पड़ेगा। लेकिन उसके मिनिमम स्टैंडर्ड्स हमको क्लेरिफाई नहीं किए। सिर्फ 15 मीटर से नीचे के जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स थे, वो नेशनल बिल्डिंग कोड में जो टेबल है, टेबल 7 एंड टेबल 23, अगर आप पुरानी टेबल में जाएं 2005 की एनबीसी में, तो टेबल वहां पर 23 है, और जो 2016 की एनबीसी है टेबल 7 में सिर्फ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को चेक करने का प्रोविजन है। बाकी हमारे पास कहीं भी कोई नॉर्म्स उस टाइम पर नहीं थे उसके चेक करने के। एक मैंने हमेशा समस्या देखी है, जो बिल्डिंग हम डिजाइन करते हैं, जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले से ही प्रिवेंशन पार्ट पर ध्यान दें, डिजाइन लेवल पर ध्यान दें, जैसे इंसिडेंट की बात करूंगा, झांसी में एक छोटा सा मर्केंटाइल बिल्डिंग थी, एक शोरूम था वैल्यू प्लस का, उसके अंदर 5 लोगों की जल के मृत्यु हुई है अभी। अब बताइए, छोटी सी बिल्डिंग जिसका कवर्ड एरिया 500 वर्ग मीटर से कम, हाइट 15 मीटर से कम, फिर भी छोटी सी बिल्डिंग में आग लगने पर उसमें करीब करीब 5 लोग मरे। तो यही देखा गया कि जो हमने स्टेयरकेस डिजाइन की थी उसकी, वो स्टेयरकेस डिजाइन हमने इंटरनल स्टेयरकेस के रूप में की बैक साइड में। तो जब भी आग लगी तो वो लोग उससे बाहर निकल ही नहीं पाए। तो इस जो डिजाइनिंग अगर हम लोग एक्सटर्नल स्टेयरकेस के रूप में करें, अगर एक स्टेयरकेस भी है अगर डिजाइन कर रहे हैं, अगर हम फायर एग्जिट के रूप में डिजाइन करें तो हमारे लिए बहुत बेटर होगा। एक मैं बताना चाहता था, एक मिथ और है ये कि हमें इसको गाड़ी घूमने के लिए जगह चाहिए, लेकिन आप खुद सोचा, 300, 350, 400 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग है, और आप एज पर बिल्डिंग बाय लॉ सेटबैक उसमें 2.5 से 3 मीटर का दे रहे हैं, तो उसमें गाड़ी कैसे जा पाएगी? तो वो बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग हमारे लिए नहीं है। फायर सर्विस के लिए गाड़ी घूमने के लिए जगह की जरूरत नहीं है, वो जरूरत है वेंटिलेशन और लाइटिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए, ना कि फायर सर्विस व्हीकल्स के लिए। फायर सर्विस व्हीकल्स के लिए जो अराउंड द ओपन स्पेस बिल्डिंग का आता है, वो पॉइंट आता है 15 मीटर से ऊपर के लिए, या एज पर बिल्डिंग बाय लॉज 500 वर्ग मीटर से ज्यादा कवर्ड एरिया के लिए। अगर यहीं पर हम बात करें, नया अभी मैंने देखा है अपने यहाँ जिला पंचायत के नॉर्म्स आए हैं। जिला पंचायत में 400 वर्ग मीटर की बिल्डिंग के लिए भी जो नॉर्म्स कर दिए हैं उन लोग वहां पर के 400 वर्ग मीटर एरिया में भी आपको 6 मीटर का सेटबैक अराउंड द बिल्डिंग चाहिए वहां पे, और 4 मीटर का जो ओपन स्पेस है ओनली फॉर फायर टेंडर मूवमेंट्स के लिए चाहिए। अगर आप एनबीसी में देखें तो बिल्डिंग फॉर फायर टेंडर मूवमेंट ओपन स्पेस चाहिए 6 मीटर का, और एज पर द गाइडलाइंस ऑफ लोकल फायर ऑफिसर।
लोकल फायर ऑफिसर जो डिफाइन करे फिर उसके बाद, लेकिन मिनिमम कम से कम 6 मीटर का ओपन स्पेस चाहिए होता है। अब बहुत सी चीजें मैंने एक और देखी है कि हम लोग जो नक्शे पास होते हैं अथॉरिटीज में, वो कैटेगरी वाइज नहीं होते हैं, सिर्फ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स या रेजिडेंशियल में पास होते हैं, जबकि बहुत साफ साफ क्लियर गाइडलाइंस हैं कि कोई भी बिल्डिंग पास होगी तो वो उसके मेन यूज के आधार पे होगी। जैसे अगर होटल है तो होटल में पास होनी चाहिए, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में पास होनी चाहिए, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है शॉपिंग में पास होनी चाहिए, कोई रेजिडेंशियल है रेजिडेंशियल में होनी चाहिए, अगर लॉज है तो लॉज में होनी चाहिए, यदि वो स्टोरेज है तो स्टोरेज में होनी चाहिए, अगर पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल पंप में होनी चाहिए, हजार्डस बिल्डिंग है तो हजार्डस बिल्डिंग में होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मीन्स हमारी जो 9 कैटेगरीज हैं और 9 के सब कैटेगरीज मिला के 16 से 17 बिल्डिंग्स हो जाती हैं, वो पर्टिकुलर मैप में आना चाहिए कि बिल्डिंग में हमको बनाना क्या है, फ्लोर वाइज इसका इस्तेमाल क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। फिर बहुत सी जगह देखा जाता है, जैसे आप मैं अगर प्रिवेंशन की बात करते हैं हम लोग कि डिजाइनिंग और जो क्यों इम्पोर्टेंट है डिजाइनिंग। अगर आप देखें ऑल ओवर इंडिया या कहीं भी वर्ल्ड में कहीं जाएंगे आप, तो पेट्रोल पंप, गैस गोडाउन्स, एक्सप्लोजिव की शॉप्स, क्रैकर्स की शॉप्स, ये स्पेशलाइज्ड डिजाइनिंग है। अगर आप देखेंगे तो ये चीफ कंट्रोलर एक्सप्लोजिव द्वारा हमेशा इनके नक्शे के लिए ऑथराइज आर्किटेक्ट्स होते हैं और वही इनके नक्शे बनाते हैं, पेट्रोल पंप्स के, गैस गोडाउन्स के और आपके सीएनजी स्टेशंस के। तो आपको प्रिवेंशन, और इसीलिए उनका सिमिलर डिजाइन होगा ऑल ओवर इंडिया जाएंगे तो आप पेट्रोल पंप में कोई भी चीज हम इधर से उधर नहीं कर सकते। अब उस पर नेशनल बिल्डिंग कोड अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उसका पर्टिकुलर एक्ट बना हुआ है, पेट्रोलियम रूल्स, पेट्रोलियम के पेट्रोलियम्स लगा हुआ है। अगर फायर का उसमें देखें तो OISD 225 के अकॉर्डिंग उसमें फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाते हैं। सीएनजी स्टेशन के लिए PNGRB के नॉर्म्स है, PNGRB के नॉर्म्स को हमको डिजाइन के अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहिए, पैसों के नॉर्म्स के द्वारा डिजाइन करना चाहिए। फिर अगर फायर फाइटिंग सिस्टम डिजाइन करना है उसमें तो OISD 179 है। हम उसमें अगर नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग कोई चीज काम करते हैं उसके अंदर, तो वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसका पर्टिकुलर एक्ट और नियम अलग से बनाए गए हैं, NBC उस पर लागू नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमने देखा है ऑनलाइन हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं, वो NBC नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग ही उसको अप्लाई कर देते हैं, या जो ऑथराइज नहीं है वो भी उसके नक्शे बनाकर सिंपल नॉर्म्स में हमारे पास उसको भेज देते हैं। जब हम उसमें ऑब्जेक्शंस लगाते हैं तो यही लिख के देते हैं कि नेशनल बिल्डिंग कोड को इसमें फॉलो ना किया जाए, इसमें पेट्रोलियम रूल्स के अकॉर्डिंग, गैस सिलेंडर रूल्स के अकॉर्डिंग, एक्सप्लोजिव रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम होगा, इसका डिजाइन जो होगा। तो मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट्स, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, बिल्डिंग से ज्यादा संबंधित होते हैं, स्पेशलाइज्ड वर्क होता है ये, तो इसमें हमको उन नॉर्म्स को पढ़ने की आवश्यकता होती है। एक मैंने देखा है, एक जनरल डिस्कशन करूंगा कि फायर कंट्रोल रूम या फायर वाटर टैंक जब हम लोग डिजाइन करते हैं एक बिल्डिंग के अंदर, उसमें भी हम क्या करते हैं, इंटरनल पार्ट में या बेसमेंट में जाकर हम लोग डिजाइन करते हैं। फायर कंट्रोल रूम बना दिया, सेकंड बेसमेंट है, सेकंड बेसमेंट के अंदर जाके फायर कंट्रोल रूम बन गया। लेकिन अगर आप उसका देखें, अगर कोई कल को आग लगती है तो वो कंट्रोल रूम तो हमें खाली करना पड़ेगा। ऐसे कंट्रोल रूम को हमें क्या करना है कि जो फायर लगने पर खाली करना पड़े। तो हमारे कहीं ना कहीं लकुनाज हैं डिजाइनिंग पे। हमको कंट्रोल रूम कहाँ रखना है, NBC में साफ साफ दिया हुआ एक सेफेस्ट जगह पे, सेपरेट फ्रॉम द बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग में आग भी लग जाए, अगर आप दूसरी आग लगने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, अगर सिर्फ थ्रेट जो टेररिस्ट का आज का थ्रेट है कि किसी भी मॉल पे किसी भी होटल में जाके कब्जा कर लें, अगर वो कहीं कंट्रोल रूम में जाके एक आदमी को बैठा देंगे तो पूरी बिल्डिंग को कब्जा कर लेंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको हमेशा कंट्रोल रूम को, फायर कंट्रोल रूम को सेपरेट रखना चाहिए बिल्डिंग के पार्ट्स। बेसमेंट में ले जाकर, सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे ले जाकर नहीं करना चाहिए। हमेशा उसका सेपरेट वे हो, आउट एंड इन का, और सेपरेट फ्रॉम द बिल्डिंग, कि अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो उस कंट्रोल रूम में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ये।
जो छोटा सा डिजाइन का एक्सपेक्ट है। दूसरा मैंने बहुत बार देखा है कि जो हम एक ही स्टेयर के डिजाइन 500 मीटर से नीचे कोई बिल्डिंग है अगर कवर्ड एरिया की, उसमें एक ही बिल्डिंग हम स्टेयर केस के लिए बोलते हैं कि एक ही बिल्डिंग एक ही स्टेयर केस लगे बननी चाहिए उसमें, लेकिन उसे इंटरनल स्टेयर केस हो गई। अगर निकलना होगा तो कैसे करेंगे? हेलो, इंटरनल स्टेयर केस जो है आपकी, वो हमेशा अगर फायर के दौरान अगर देखें तो एक उसमें अगर स्मोक चला गया इंटरनल स्टेयर केस के अंदर, तो वो एक स्टैक इफेक्ट होगा, पूरी बिल्डिंग में बहुत जल्दी फैलेगा। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमेशा एक्सटर्नल स्टेयर केस पर ज्यादा ध्यान दें, कोशिश करें। और एक्सटर्नल स्टेयर केस में भी नेचुरल वेंटिलेशन, हम लोग उसमें आजकल विंडोज देना बिल्कुल बंद कर दिया है। ऊपर अगर हमने ममटी तक लेके गए उसको, ममटी के पास भी जाकर हम लोग उसमें विंडोज, ओपन विंडोज या जाली लगा के नहीं दे रहे हैं, जिससे कि नेचुरल वेंटिलेशन उसमें रहे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लैक कर रहे हैं डिजाइनिंग के, बिल्डिंग डिजाइन के दौरान। वॉट एवर द रीजन के उसका फ्रंट खराब होगा या कुछ और प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये आग से अगर मैं सुरक्षित रखना है, ये हमारी अपनी बेसिक जिम्मेदारी भी है सभी की। कम से कम बिल्डिंग्स में जो डिजाइन बने वो आग से सुरक्षित डिजाइन ही बने। दूसरा, नेचुरल वेंटिलेशन का पे मैंने बात की। अगर चौड़ाई, विड्थ या स्टेयरकेस, उसकी हाइट, जो ट्रीड की हाइट है, उसको भी हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं बहुत बार, जिससे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक दूसरा कंपार्टमेंटेशन, स्टेयरकेस पे हम जो गेट्स दे रहे हैं, फायर डोर्स हम प्लान ही नहीं कर रहे हैं उसमें। अगर हॉल में आग लगी, स्टेयरकेस के अंदर धुआं आ गया, तो धुआं फौरन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे स्प्रेड हो जाता है, और जो निकलने वाले लोग हैं एक ही स्टेयरकेस है तो निकल नहीं पाता है वो। 15 मीटर से नीचे अगर नेचुरल वेंटिलेशन रखें स्टेयरकेस में, बहुत बेटर है। 15 मीटर से ऊपर जाते अगर हम, तो उसके लिए प्रेशराइजेशन ऑफ स्टेयरकेस चाहिए, मैकेनिकल प्रेशराइजेशन चाहिए। तो मैकेनिकल प्रेशराइजेशन अगर आप देखें तो बहुत ही कम बिल्डिंग्स में आपको ये मिलेगा। हॉस्पिटल्स की बात करें, जैसे आप अधिकतर आग हॉस्पिटल्स में लगती हैं, तो हॉरिजॉन्टल एवोक्यूएशन जो होता है हमारा, एक फ्लोर से फ्लोर के पार्ट्स को ही हमें डिवाइड करना चाहिए अपनी। क्या एक फ्लोर, एक साइड में एक फ्लोर पर आग लगती है, तो उसे तुरंत मरीज को हम दूसरी साइड में फ्लोर के सेफली पहुंचा सकें, क्योंकि मरीज को फर्स्ट सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर लाना डिफिकल्ट है। फ्लोर टू फ्लोर ही एवोक्यूएशन हो जाए उसका, वो ज्यादा बेटर है। और ये बहुत क्लियर गाइडलाइंस जो है डिजाइनिंग के लेवल पे एंड नेशनल बिल्डिंग कोड में बहुत अच्छी तरह से दी हुई है कि हमको ऐसा करना है। तो एक ऐसे ही मैं इंडस्ट्री में आपको पॉइंट रखूंगा कि हम लोग बॉयलर लगाते हैं, इंडस्ट्रीज में बॉयलर होते हैं, लेकिन बॉयलर प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ नहीं बना रहे। एनबीसी में साफ साफ लिखा है कि बॉयलर प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ ब्लास्ट वॉल का होना बहुत आवश्यक है। अगर ब्लास्ट हो जाए बॉयलर के अंदर, तो कम से कम दूसरे पार्ट्स में इंडस्ट्री के वो फैलेगा नहीं, स्प्रेड नहीं होगी। तो इस तरह के छोटे छोटे हमारे फायर सेफ्टी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। एक दूसरा आता है 15 मीटर से ऊपर फायर लिफ्ट की भी आवश्यकता होती है। फायर लिफ्ट डिजाइन नहीं हो रही है कहीं पर भी। एक और मिथ है कि हॉस्पिटल्स में रैंप की बहुत आवश्यकता है। रैंप की आवश्यकता हॉस्पिटल्स में इस पर नेशनल बिल्डिंग कोड नहीं है, लेकिन आपको अगर स्टेयरकेस बनानी है तो स्टेयरकेस वो सेपरेट फ्रॉम द बिल्डिंग होनी चाहिए। एक टावर के रूप में अगर आप स्टेयरकेस बना देंगे और प्रेशराइज करके अगर कंपार्टमेंटेशन कर देंगे स्टेयरकेस का हॉस्पिटल के अदर पार्ट से, तो उसमें स्मोक नहीं जा पाएगा। सिर्फ हमें स्मोक स्प्रेड को रोकना है, और स्मोक स्प्रेड को रोकने के बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल किए हुए हैं पार्ट 4 एंड नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आता है बहुत बार क्या होता है कि नीचे हम मार्केट बना लें, मिक्स ऑक्यूपेंसीज के बारे में। मिक्स ऑक्यूपेंसीज में क्या होता है कि नीचे अगर शॉपिंग है, ऊपर होटल बना सकते हैं हम लोग, लेकिन क्या कर रहे हैं कि शॉपिंग के अंदर से ही हम लोग स्टेयरकेस दे रहे हैं होटल्स पर जाने के लिए भी। सिंपल उसके नॉर्म्स हैं कि एक तो 240 मिनट्स का हम उसमें पार्टीशन दें उसको,
फायर रेजिस्टेंस जो है 240 मिनट्स का कम से कम होना चाहिए उसमें, 120 से 240 मिनट्स का। उसके बाद सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट टू द मतलब जो होटल बिल्डिंग के लिए होगा वो सेपरेट होगा। हाँ, अगर हम नोएडा गाजियाबाद में देखें जाके तो नीचे मॉल चल रहा है, ऊपर होटल है, तो लेकिन दिखता है वो, लेकिन उन्होंने उसे 240 मिनट्स का अगर दिया होगा डिजाइन के लेवल पर ही किया होगा उन्होंने उसको। यूटिलिटी फ्लोर एक्सपेंशन की बात वो करते हैं वहां पे, और एंट्री एग्जिट उनका सेपरेट होता है, जबकि हमें बाहर से दिखाई देगा सब सेम है। अगर हम इस तरह की छोटे छोटे शहरों में इस तरह से डिजाइन करें तो हमारी बहुत सारी चीजें बहुत सेफली हो सकती हैं इसमें। अब वाटर डिमांड्स की बात आती है कि इसमें 2 लाख लीटर चाहिए पानी, इसमें 1 लाख लीटर चाहिए पानी। वाटर टैंक का डिजाइन हम लोग क्या करते हैं कि एक ही टैंक बना देते हैं, जबकि डिजाइनिंग दी हुई है एनबीसी में कि कोई भी टैंक बनेगा 2 पार्ट्स में बनेगा, 2 पार्ट से उसका सक्शन होगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी 1 पार्ट अगर मेंटेनेंस में जाता है तो दूसरे पार्ट को हम लोग आइसोलेट करके, जो मेंटेनेंस पार्ट है दूसरे पार्ट से हम लोग वाटर ले सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स। अब क्या होता है कि जब आग लगती है, समझा वो 1 महीने से एक टैंक वो अंडर मेंटेनेंस ही है, तो हम लोग उसका मेंटेन नहीं कर पाते बहुत बार। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखने हैं, और ये सब चीजें पार्ट 4 में बहुत क्लियरली आपको दी हुई है वहां कि फायर कंट्रोल रूम कैसा बनना चाहिए, फायर वाटर टैंक कैसा होना चाहिए, किस जगह पर होना चाहिए, उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। तीसरा जो मेन एक्सपेक्ट आ रहा है फायर सेफ्टी में, रिफ्यूज एरिया का। रिफ्यूज एरिया में भी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी कि जो रिफ्यूज एरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो करीब करीब 24 मीटर के बाद है, लेकिन उसमें एक एग्जम्पशन भी है कि अगर आप प्रॉपर बालकोनीज देते हैं, बालकोनीज का एरिया अगर कवर उसके हिसाब से अकॉर्डिंग है, तो रिफ्यूज एरिया की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। हेलो, तो रिफ्यूज एरिया की मैं बात कर, तो रिफ्यूज एरिया के लिए जो कम से कम एक फ्लोर के जो जितना भी ऑक्यूपेंट्स हैं आपके, उसके कवर जो अगर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग देखें तो करीब करीब 12 मीटर पर पर्सन 12 मीटर स्क्वायर का चाहिए हमको। तो रिफ्यूज एरिया अगर बालकोनी है तो बालकोनी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फायर एग्जिट में जो हम देख रहे हैं, फायर एग्जिट में ट्रेवल डिस्टेंस और डेड एंड, वाइल प्लानिंग ऑफ द बिल्डिंग डिजाइनिंग के तौर पे डेड एंड और ट्रेवल डिस्टेंस को हम करीब करीब मिस कर रहे हैं इसको डिजाइनिंग में, क्योंकि ट्रेवल डिस्टेंस अगर 22 मीटर 12 to 22.5 मीटर है असेंबली बिल्डिंग के लिए, एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए करीब 30 मीटर है। डेड एंड अगर बात करें तो दो बिल्डिंग्स ऐसी आती हैं जहां एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स जो हैं हमारी, इसमें 6 मीटर से ज्यादा का डेड एंड अलाउड ही नहीं है। इसको, इस एक्सपेक्ट को आज की डेट में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, ट्रैवल डिस्टेंस एंड डेड एंड को। तो मैं चाहूंगा कि आप जब भी कोई डिजाइन करें बिल्डिंग, तो ट्रैवल डिस्टेंस का और डेड एंड का हमेशा ख्याल रखें, स्पेशली असेंबली बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग और एजुकेशनल बिल्डिंग के अंदर। अब मैं इसमें आपके कुछ इंडस्ट्रियल पार्ट का भी आप कहें तो मैं इसमें डिस्कस कर लेते हैं, या कोई और पॉइंट है आपका तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, तो सॉर्ट ऑफ डिस्कशन ज्यादा बेटर रहेगा। इस अभी तक जितना हम लोगों का डिस्कशन हुआ है जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स पे, इस पे अगर क्वेश्चंस हो तो गेस्ट स्पीकर का कहना है कि आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, और उसके बाद इंडस्ट्रियल बिल्डिंग टेकअप कर ली जाए। हाँ, मेरा क्वेश्चन एक है जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। सर, अगर मान लीजिए, मैं निशात अहमद बोल रहा हूँ, जी जी। अगर मान लीजिए कि किसी प्लॉट पे रेसिडेंशियल नक्शा पास हुआ है और जी। उसमें जो है वो नर्सिंग होम रन हो रहा है, तो उसकी ऑक्यूपेंसी क्या मानी जाएगी? पहला क्वेश्चन तो ये मैं इसमें जवाब देना चाहूंगा। देखिए, फायर डिपार्टमेंट का मैंने पहले बताया था, लैंड यूज को हम चेक नहीं करते हैं। फायर डिपार्टमेंट की अथॉरिटी के अंदर लैंड यूज नहीं आता है। अगर आप अच्छा, शाम को मालिश करा कर आप सोएंगे। हेलो,
जी जी हाँ। हाँ, तो फायर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने पॉइंट्स को चेक करेगा कि फायर एग्जिट प्रॉपर है या नहीं, और उसमें फायर फाइटिंग सिस्टम है या नहीं, एक्सेस रोड विड्थ उतनी है या नहीं जितनी हमें बताया गया कि हमें इतनी रोड विड्थ चाहिए फायर मूवमेंट के, फायर व्हीकल मूवमेंट के लिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है कि जो है उसका फिर मतलब सेटबैक फिर क्या चेक होता है क्या? अगर चेक होता है तो देखिए, क्या? मैं आपको वही बताया जो मैं, ये लीगल एक्सपेक्ट है एक, कि 15 मीटर से ऊपर के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड दिए गए हैं फायर प्रिवेंशन फायर सेफ्टी एक्ट में 2005 में, उसमें सेटबैक हमें देखना है, लेकिन वो एक्ट किसके लिए लागू है? 15 मीटर से ज्यादा के लिए। अगर हम बिल्डिंग बाईलॉज देखें, सेम 500 वर्ग मीटर से ज्यादा अगर कवर्ड एरिया है, वो 15 मीटर से ऊपर ज्यादा अगर बिल्डिंग की हाइट है, तो सेटबैक हमको देखना है। लेकिन इससे नीचे के बिल्डिंग के लिए हमारे पास क्लियर गाइडलाइन नहीं है कि हमें सेटबैक चेक करना है अथवा नहीं करना। तो मेरे हिसाब से हमको सेटबैक, अभी जो 2022 में शासनादेश भी आया था जिसमें सेटबैक चेक करने के लिए उन्होंने उसको बोल दिया सिर्फ अथॉरिटी चेक करेगी, हम लोग चेक नहीं करेंगे 15 मीटर से नीचे के लिए। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, देखिए, ओके। कोई भी काम होता है मिनिमम स्टैंडर्ड सर। गवर्नमेंट जो भी काम करती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो अपनी मर्जी से नहीं, वो किसी ना किसी नियम से बात करना चाहिए उनको। तो कहीं पर भी आप देखें तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स में 15 मीटर के नीचे के लिए हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। जिस नेशनल बिल्डिंग कोड में सिर्फ जो नेशनल वो है टेबल 7 और टेबल 23, उसी में 15 मीटर से नीचे के लिए व्यवस्थाएं दी हुई हैं, और जो सिर्फ फायर फाइटिंग से रिलेटेड व्यवस्थाएं ही दी हुई हैं, राइटिंग में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, और 15 मीटर से ऊपर तो बस वही 6 मीटर चाहिए? मिनिमम 6 मीटर एज पर 4.6 एनबीसी के अकॉर्डिंग, क्लॉज नंबर 4.6, मिनिमम 6 मीटर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ TFO। एज स्टेटेड बाय लोकल फायर ऑफिसर। वो बिल्डिंग हाइट के हिसाब से फिर वो 6 मीटर से 7 मीटर 8 मीटर 9 मीटर ऐसे होता जाता है। वो मिनिमम 6 मीटर है। देखिए, वो सेटबैक है, हमें Setback। ओपन स्पेस की आवश्यकता है। जी यही जब हम पर कोई बिल्डिंग बायलॉज के नियम लगा देगा तो हम लोग भी वहीं अटक जाते हैं फिर। देखिए, हमें वो चेक करनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जो मैं जिस तरह से देखता हूँ कि हमको वो चीज नहीं देखनी चाहिए, हमें सिर्फ अपने जो प्रॉपर नॉर्म्स हैं उतने वहीं तक ही अपने को रखना चाहिए इसे। नहीं, हाई राइज बिल्डिंग सर से क्या होता है मेरा सर एक कि पॉइंट जैसे था। अगर सेटबैक जो है वो एक सर्टेन जैसे 10 मीटर पहुंच गया तो उसमें वो ओपन पार्किंग परमिट कर देते हैं 6 मीटर का क्लियर राइट ऑफ वे लेके, तो जी, वो परमिसेबल है। जी जी वो अथॉरिटी करेगी, ये जी जी। फायर डिपार्टमेंट से संबंध नहीं है फिर हाँ, इसका। बट 6 मीटर मिनिमम है, वो राइट ऑफ वे चाहिए ही चाहिए बिकॉज ऑफ हाँ द जी, फायर डिपार्टमेंट। जी जी जी। सर मेरा एक पॉइंट था ग्रुप हाउसिंग के लिए। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या ग्रुप हाउसिंग है, और उसमें जो अभी आपने चर्चा की कि मिनिमम ट्रैवल डिस्टेंस, फायर एग्जिट के जो मिनिमम ट्रैवल डिस्टेंस हैं, वो नॉर्म्स एग्जैक्टली क्या हैं? देखिए, रेजिडेंशियल के लिए वो 22.5 है। एक मिनट। रेजिडेंशियल के लिए टाइप 1 अगर ऑक्यूपेंसी है, टाइप 1 कंस्ट्रक्शन है तो 30 मीटर है, एंड टाइप 2 है अगर तो 22.5 है। सेम एजुकेशनल के लिए 30 एंड 22.5, करीब करीब सब सेम है। असेंबली में 30 मीटर है दोनों के लिए, बिजनेस में 30 मीटर है, मर्केंटाइल में भी 30 मीटर है, G1 G2 G3 में, G3 के लिए 22.5 है, G1 G2 में 45 मीटर है जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। स्टोरेज के लिए 30 मीटर है, और हजार्डस ग्रुप जे है जो 22.5 है। अगर स्प्रिंकलर्ड है बिल्डिंग तो वो डबल हो जाता है, ट्रेवल डिस्टेंस इसका डबल हो जाएगा। डबल नहीं सर, 1.5 टाइम्स होता है। डबल है करीब करीब। तो फुली स्प्रिंकलर बिल्डिंग है, हाँ 1.5, ट्रेवल डिस्टेंस में भी इंक्रीज बाय 50%। 50। सर मेरा एक पॉइंट था। 50% इंक्रीज हो जाएगा ट्रेवल डिस्टेंस। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। एक पॉइंट था, ये जो टेबल नंबर 19 है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वाली, जी जी। जो FAR से रिलेट करी हुई है,
तो वो नहीं, FAR कंस्ट्रक्शन से से क्या रिलेटेड है मतलब? है, सिर्फ ओनली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। उसमें FAR भी है ना सर? एफएआर नहीं है उसमें, हमारे लिए नहीं है, हम लोग एफएआर नहीं चेक करते। नहीं आप नहीं करते, लेकिन जो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाती है उससे फायर रेटिंग में फर्क पड़ता है ना मल्टी फायर स्टोरेज रेटिंग में में? फर्क पड़ जाता है हमारे अकॉर्डिंग, उसमें ट्रेवल डिस्टेंस और डेड एंड हम चेक करते हैं उसमें। अच्छा। और हाँ जी। दूसरा एक और सवाल था सर, जो अंडरग्राउंड टैंक कैपेसिटीज है आपकी, जो NBC में दे रखी हैं कुछ, वो मिनिमम है, जी जी। लेकिन जब हम इसको हाइड्रेंट और स्प्रिंकलर दोनों लगाते हैं तो जो इनके अपने कोड्स हैं, हाइड्रेंट वाला और स्प्रिंकलर वाला, उनके थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी आती है। हम तो उसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आप खीफ को वो करते हैं, जो भी उसमें कैपेसिटी दे रखी है, अलग से हम कैलकुलेट नहीं करते उसके लिए। नहीं, जैसे कोड है ना सर, हाइड्रेंट का अलग है कोड, हाइड्रेंट का अलग है, डिजाइनिंग का अलग है लेकिन कोड। वाटर कैपेसिटी नहीं है उसमें हाइड्रेंट वाले में। ओनली है सर, हाइड्रेंट है, अगर लो हजार्ड है तो करीब करीब 45 मीटर पे हाइड्रेंट होना चाहिए, 30 नहीं मीटर, वो उसमें डिस्टेंसेस डिजाइनिंग है। वगैरह तो सारी ठीक है, हाँ हाँ। लेकिन वो जैसे वाटर लाइट कैपेसिटी हजार्ड, नहीं है उसमें। मॉडरेट और नहीं, हाई वाटर हजार्ड के लिए कैपेसिटी है। उसमें नहीं मिलेगी आपको, वाटर स्टोरेज का तो अलग से एक वो है डिजाइनिंग। नहीं, उसमें 13039 जो कोड है आपका हाइड्रेंट का, हाँ हाँ हाँ। उसमें सारे जो तरह के कॉम्बिनेशन में दे रखी है उन्होंने कैपेसिटी। इसी तरह जो स्प्रिंकलर वाला कोड है 15015, हजार्ड के अकॉर्डिंग का उन्होंने दे रखी है वो तो उनके स्टोरेज। हिसाब से जब कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो तो वो 5-6 ज्यादा लाख आएगी। लीटर आती है। हाँ हाँ, आप उसमें उसके अकॉर्डिंग ना जाके नेशनल बिल्डिंग कोड को ही फॉलो करें उसमें, जो अच्छा, स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, सर एक आपने जो है जो लेक्चर में अपने जिक्र किया था कि 9 मीटर के ऊपर कुछ बिल्डिंग्स में फायर का एनओसी चाहिए, तो उसमें स्कूल का नाम लिया था, दूसरी बिल्डिंग कौन सा नाम लिया था? उसमें है स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल से, ओके ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग जैसे बिल्डिंग बायलॉज की बात करते हैं और उसमें हम लोग नॉर्मल जो अपना NBC में दिया हुआ है उस बायलॉज पे हम लोग चलते हैं, जबकि जो है कई बार देखते हैं आग लगने पे हमारी पूरी की पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स हो जाती है, चाहे वो स्ट्रक्चर वो RCC बिल्डिंग हो या आपका जो है स्टील बिल्डिंग हो, स्ट्रक्चरली कोलैप्स उसमें हो जाता है। जबकि NBC हमारा ये कहता है कि जो बिल्डिंग का हम फायर रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसमें हमारे जो क्लियर कवर हैं RCC बिल्डिंग में क्लियर कवर टू द स्टील, वो जो है स्पेसिफाइड है। हम लोग जब कभी जाते हैं NOC लेने के लिए तो हम लोग जो है सिर्फ वो चेक करते हैं कि हाँ हमारा जो है बाइलाज के अकॉर्डिंग इतना इतना जो है उसमें सेटबैक छूटा हुआ है और इतना हमारा जो है वो ट्रेवल डिस्टेंस वगैरह सब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमको कितने लीटर का कितना हाइड्रेंट का डाया चाहिए और कितना हमको जो है वाटर टैंक चाहिए, ये सब तो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरली उस पर हम लोग कोई ऑडिट नहीं करते हैं और बिल्डिंग ऐसे ही पास कर दी जाती है। तो नॉर्मली जो है एक सिंपल बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो उसमें कवर हम देते हैं सिर्फ 25 mm का, जो कि जो है मैक्सिमम हाफ एन आवर के लिए फायर रेसिस्टेंस देता है। जबकि हमें जो कई बिल्डिंग ऐसी होती है जिनमें फायर रेसिस्टेंस हमको कम से कम 2 घंटे का चाहिए। उसके बारे में सर कोई लॉ है क्या आपके यहाँ? नहीं जी, हमारे यहाँ नहीं है इसका, ये स्ट्रक्चर इंजीनियर से इसलिए ड्राइंग पास होती है, जो आप अथॉरिटी से ड्राइंग पास कराते हैं, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर उसमें देखता है उसने क्या करना है, सर वो उसमें लेकिन फायर के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है। हमारे सिर्फ जो 20 पॉइंट्स है, मैं आपको बता दूं, तो जो 20 पॉइंट्स अब तक जो डिजाइन हुए हैं, अब 2022 एक्ट में तो अभी नियम में नहीं आया है, लेकिन अगर आप 2005 एक्ट में जाएंगे तो उसकी धारा 4 में न्यूनतम मानक दिए हुए हैं, और बिल्डिंग बायलॉज में वही मानक उन्होंने दिए, जैसे पहुंच मार्ग, पानी की स्थायी टंकी, भूमिगत टैंक, स्वचालित स्प्रिंकलर, फर्स्ट हैंड हॉजरील और एक्सटिंग्विशर्स, कंपार्टमेंटेशन, ऑटोमेटेड डिटेक्शन, PS पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फायर एग्जिट्स, विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत, फायरमैन स्विच, फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कमर सिस्टम, सेटबैक, निकास की आवश्यकताएं, फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण, अग्निशमन पद्धति के प्रचलन के लिए स्टाफ प्रशिक्षण, निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल, साथ ही अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा और फीस जो जमा होगी। तो ये 20 पॉइंट्स हैं। अगर हम इनसे ज्यादा बात करेंगे तो हम कानून का ही उल्लंघन कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कानून का उल्लंघन करना चाहिए। ये सबका अपना अपना एक एरिया है वर्क का, स्ट्रक्चरल इंजीनियर अलग काम करते हैं, आप अलग काम करेंगे, आर्किटेक्ट, हम लोग अपना एक फील्ड है, तो उसमें हम लोग नहीं जाते हैं, फिर तो बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी फिर। आई थिंक
अगर क्वेश्चंस अगर खत्म हो गए तो अब हम लोग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स टेकअप कर लें ब्रीफली। Yes, we can take up industrial sir. building now. जी तो सभी बाकी लोग लोग अपने अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें, ये हाँ, रिक्वेस्ट है। बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें और देयर आर गेस्ट सम डिस्टरबेंस ड्यूरिंग द लेक्चर। हाँ, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड आवाजें आती हैं, डिस्टर्ब होता है, तो बाकी लोग और सभी लोग अपना माइक स्पीकर के अलावा सब लोग ऑफ कर लें, प्लीज म्यूट कर लें। अब हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पे शुरुआत करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो नेशनल बिल्डिंग कोड बनाया गया है, ये अगर इसमें साफ साफ लिखा गया है, ये छोटी इंडस्ट्री MSME जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ही है, बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए नहीं। अब जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लाइट हजार्ड, मॉडरेट हजार्ड एंड हाई हजार्ड। इसके लिए एक टेबल नेशनल बिल्डिंग कोड ने एनेक्सर बी में दी हुई है, जिसमें उन्होंने बिल्डिंग्स को उनके हजार्ड के अकॉर्डिंग, अगर आप देखें तो मेरे जो फ्लैश पॉइंट जो होता है किसी भी मटेरियल का या फायर पॉइंट, उस पर ही डिजाइन किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, लाइट हजार्ड, मॉडरेट एंड हाई हजार्ड। फिर उन्होंने एक वर्ड और लिख दिया है कि क्योंकि इंडस्ट्री जो है काफी चीजें उसमें मिक्स होती हैं, एक इंडस्ट्री के अंदर एक ऑफिस बिल्डिंग भी होती है, एक बिजनेस बिल्डिंग भी होती है, मर्केंटाइल बिल्डिंग भी होती है, स्टोरेज भी होता है, प्रोसेस भी होता है। तो उन्होंने एक वर्ड और लिखा है कि सिमिलर, कोई अगर प्रोसेस किसी चीज के सिमिलर है, अगर वो इंडस्ट्री का नाम नहीं है, तो आप उसे उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री उन्होंने लो हजार्ड में दी हुई है, लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री के साथ अगर उसमें कहीं LPG का यूज हो रहा है, और LPG के लिए जो आप अगर देखें तो एज पर एक्सप्लोजिव रूल्स 250 से 300 250 के मोर देन 250 kg अगर LPG आपने स्टोरेज की हुई है तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता है। तो LPG के यूज होने से वो इंडस्ट्री का जो हजार्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाई हजार्ड में। जो टेबल के अकॉर्डिंग मींस लो हजार्ड थी वो हाई हजार्ड में कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही अगर आप जाएं शुगर इंडस्ट्रीज, गन्ने वाली जो इंडस्ट्री होती है ये, तो वो लो हजार्ड में। अगर लो गन्ने के साथ साथ उसमें डिस्टिलरी आ गई, एथेनॉल का बनने लगा, तो वो कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी आपकी हाई हजार्ड में। तो इंडस्ट्री में जो हम लोग अधिकतर देखते हैं कि जो मैप जो बनना चाहिए, आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्शंस लगेंगे इंडस्ट्री में, उसके मैप ही सही से नहीं बनते हैं। जैसे उसका की प्लान नहीं होगा, साइड एलिवेशंस नहीं होंगे, फ्रंट एलिवेशंस नहीं होंगे, साइड प्लान में सिर्फ उन्होंने आपने टॉप व्यू दे दिया होगा। फिर उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, रिस्क प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो फायर की आती है, क्योंकि तब तक कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता जब तक आप हमें ये ना बताएं कि उसमें आपने क्या क्या प्रोडक्ट यूज किए हैं। तो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आर्किटेक्ट्स जो डिजाइन करते हैं इंडस्ट्रीज को, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या है जो बन रहे हैं आपके, और फिनिश प्रोडक्ट क्या है, स्टोरेज क्या है, और ये क्या केमिकल्स या कोई हाईली हजार्ड आप चीज उसमें यूज कर रहे हैं, तो उसका स्पेसिफिकेशंस क्या है। जैसे MSDS, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स, अगर आप अपलोड कर देते हैं ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई होना इजी हो जाता है कि ये लो हजार्ड है, मॉडरेट हजार्ड है या हाई हजार्ड है। फायर फाइटिंग की सिस्टम की बात आई तो सिंपल आपका है टेबल 20 जो नेशनल 2016 NBC है, इसमें टेबल 7 है। अगर डिजाइन के हिसाब से अगर देखा जाए फायर फाइटिंग सिस्टम, तो वाटर टैंक डिजाइन आपको सेम है, 2 लाख लीटर लिख दिया से मीन्स 2 लाख लीटर। अब ओवरहेड टैंक अगर 10,000 लीटर लिखा है सिर्फ 10,000 लीटर। उसमें हमें जो पहले मेरी बात हुई कि हाइड्रेंट सिस्टम जो BIS है उसमें कुछ और वाटर डिमांड्स बढ़ाई हुई हैं, तो उसके लिए आप ना जाएं,
सिर्फ आपको नेशनल बिल्डिंग कोड को ही फॉलो करना है। नेशनल बिल्डिंग कोड में जो वाटर रिक्वायरमेंट्स दी हैं वही आपको लगानी है। सिर्फ एक डिजाइनिंग में और पॉइंट होता है इसमें कि हम लोग पॉजिटिव सक्शन नहीं करते, नेगेटिव सक्शन, कि टैंक नीचे रख दिया, पंप ऊपर रख दिया उसके, तो जो सक्शन हो रहा है वाटर का वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव सक्शन में बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसमें एयर गैप आ जाएगा, एयर तो कभी बहुत बार सक ना करे पानी इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो पॉजिटिव सक्शन रखने की कोशिश करें उसमें। हाइडेंट्स की बात आ गई। हाइडेंट्स हो हमें 30 मीटर और 45 मीटर, अगर लो हजार्ड है तो 45 मीटर की डिस्टेंस पे, और अगर वो हाई हजार्ड है तो 30 मीटर की डिस्टेंस पे रख सकते हैं। एक लूपिंग, हम लोग क्या है जो डिजाइन करते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम, लूप नहीं बनाते। लूप की वजह से अगर हमने एक हाइडेंट पहला स्टार्ट कर दिया या 2-3 हाइडेंट स्टार्ट कर दिए तो आगे वाले हाइडेंट में जो प्रेशर होता है वाटर का वो कम हो जाता है। तो उसके लिए जरूरी है कि लूपिंग रहे, एक क्लोज लूप रहे, कि अगर तो जो आपका प्रेशर का मेंटेन हो सकता है, चारों तरफ प्रेशर आपको बराबर मिलेगा। दूसरा डिजाइन पॉइंट है इसका कि फारदेस्ट पॉइंट जो है आपका हाइडेंट का, उस पर टैंक जो आपका पंप हाउस से उसकी अगर दूरी फारदेस्ट पे देखा जाए तो 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर हमको मिलना चाहिए उसमें। एक और चीज है इसमें जो बहुत कंफ्यूज्ड है और मैं देखता हूँ सभी पूरे हर एक स्टेट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कौन सी ली जाती है इंडस्ट्रीज के अंदर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हम हमेशा ले लेते हैं फ्रैक्शनेटिंग टावर की, प्रोसेस बिल्डिंग की, जबकि प्रोसेस बिल्डिंग की हाइट को हम इंक्लूड नहीं करते। अगर प्रोसेस बिल्डिंग की हाइट को इंक्लूड करने लगे तो इंडिया के अंदर कोई इंडस्ट्री लग ही नहीं पाएगी, क्योंकि एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड कोई भी हाई हजार्ड इंडस्ट्री 18 मीटर से ऊंची बन ही नहीं सकती है। तो सोचिए कि कोई भी टावर अगर बना देंगे, फ्रैक्शनेटिंग टावर या फ्लेयर कोई भी, वो तो 35 मीटर 40 मीटर की मिनिमम हो जाती है, तो इंडस्ट्री लगी नहीं पाएगी इस हिसाब से। सिर्फ उसमें बहुत अच्छा पॉइंट है कि सिर्फ कंट्रोल रूम जो आगे बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का आपको हाइट लेना है इसमें, और जो किसी भी बिल्डिंग में जाएंगे आप कंट्रोल रूम वगैरह में तो ज्यादा 10-12 मीटर की हाइट बनती है उसमें। तो बहुत जगह से कई बार जब फ्लोर मिल्स है, फ्लोर मिल्स में अगर आप देखें तो मिनिमम हाइट 20 से 25 मीटर हो जाती है, तो फ्लोर मिल लग ही नहीं पाएगी। तो हमको सिर्फ हाइट ऑफ द बिल्डिंग के रूप में हाइट ऑफ द बिल्डिंग आएगी सिर्फ कंट्रोल रूम या कोई स्टोरेज की बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग की हाइट को हम लोग उसमें ऑप्ट करना चाहिए और आवेदन करना चाहिए, नहीं तो आपका आवेदन ही नहीं हो पाएगा 18 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग का अगर हाइट लेंगे उसमें। तो ये मेरा एक वो था इंडस्ट्रीज के लिए। इसके अलावा आपका कोई पॉइंट है इंडस्ट्रीज के लिए तो आप बताएं। क्वेश्चंस प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी मैं नरेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कि आज से अगर हम 15 से 20 साल अगर पीछे जाते हैं तो वो इंडस्ट्री जहाँ पर भी सेट थी वहां पर रेजिडेंशियल एरिया आज के डेट में बढ़ गया है। तो उन बिल्डिंगों को रेगुलाइज करने के लिए सीएफओ सर के यहाँ से काफी सारे लेटर्स वगैरह इशू होते हैं, तो उन लोगों की वो जो फायर के सिस्टम्स हैं उन लोगों के वो रेगुलाइज नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए क्या कोई सेट नॉर्म्स वगैरह है या आपके यहाँ से कोई स्पेशल कुछ पब्लिक को अवेयर करने के लिए कुछ कैंपेन वगैरह चलाए जाते हैं क्या? इस तरह का कोई प्रोपोजल रहता है? देखिए छूट का मामला तो कोई हमारे पास नहीं है, हाँ पब्लिक को अवेयर करने के लिए जरूर। देखिए फायर फाइटिंग पुरानी बिल्डिंग हो या नई बिल्डिंग, फायर फाइटिंग तो आपको अवश्य करानी चाहिए। नहीं सर, और मेरा पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए आज से हम 2010 की अगर बात करते हैं या 2000 की बात करते हैं तो कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज एरियाज थे जहाँ पर की इंडस्ट्रीज थी पहले। अब वहां पर लोकल बॉडीज के साथ में वहां पर कॉर्पोरेशन आ गया, जैसे कि यहाँ कानपुर के पास में एक जगह पोखराया सर रनिया इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां पर सर इंडस्ट्री के साथ साथ में रेजिडेंशियल एरिया भी काफी ज्यादा डेवलप हो गया है। तो वो डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, उसके चक्कर में जो पुरानी इंडस्ट्री हो सर वो अपनी इंडस्ट्री को तो शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब उन लोगों को सर वहां से एनओसी भी नहीं मिल पा रही है, तो करीब 15-20 फैक्ट्री है जिनके प्रपोजल सब पड़े हुए हैं, वो सबमिट होते हैं और वो रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ इंडस्ट्री जो हाइट है इंडस्ट्रीज की, अगर हम प्रोसेस हाउस को लेंगे तो सही बात है कि सर कोई भी बिल्डिंग को कोई भी एनओसी फायर डिपार्टमेंट नहीं देगा, लेकिन आप ही के डिपार्टमेंट से ये बोला जाता है कि आपकी इंडस्ट्री की हाइट ये है, इस शेड की हाइट ये है, और वो लोग ये नहीं कहते हैं कि इसमें कंट्रोल रूम की हाइट क्या है,
उसके हिसाब से हम इसको कंसिडर करेंगे। देखिए, बिल्डिंग मीन्स जिसमें लोग रह रहे हैं, जी काम नहीं, लोग रहते हैं, मतलब जहां 10 घंटे 12 घंटे बिता रहे हैं उसी की बिल्डिंग को हमें लेना है। प्रोसेस बिल्डिंग में तो आदमी जाता है, मोटर बंद करके, स्विच बंद करके वापस आ जाएगा। तो बिल्कुल अगर वो ठीक कोई कह रहा है, देखिए मैं वही बताया, मैंने पहले ही आपको स्टार्ट किया था कि हमको अपने नॉर्म्स में बंध के रहना है। सरकार ने कभी मना नहीं किया है। देखिए सुनिए, कोई कह रहा है अपनी मर्जी से कह रहा होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है कि रेजिडेंशियल एरिया है और हम लोग इंडस्ट्री को नहीं दे सकते। अगर कोई इंडस्ट्री, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है, ये काम अथॉरिटी का हो सकता है। मैंने पहले ही कहा, लैंड यूज हमारी एनओसी में आप देखेंगे जो निकल के आती है, कोई भी एनओसी पढ़ेगा कि ये सर्टिफिकेट लैंड यूज को डिफाइन नहीं करता है, ये हम लिख के देते हैं। तो दूसरा आदमी हमसे कैसे कह सकता है? ये कोई अपनी मर्जी नहीं करनी है। हमें, हमको और आपको उस पॉइंट पे टिके रहना है। जो मैंने आपको 20 पॉइंट बताए, जो फायर सर्विस के एक्ट में लिखा गया है कि आपको ये 20 पॉइंट चेक करने, तो हु आई एम टू डिसाइड कि भाई मुझे अभी इनका एफएआर भी चेक करना है, अभी मैं इनका लैंड यूज भी चेक करूंगा, अभी मैं ये भी देखूंगा इन्होंने कितनी फीस जमा की नहीं की सरकार को इलीगल। फायर डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है, आपको मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ ये, कि हम किसी भी लीगल और इलीगल, हमारी एनओसी से कोई बिल्डिंग लीगल और इलीगल नहीं होती है। सिंपल, अगर कोई किसी की नजर में लीगल बिल्डिंग है, हम तो उसको भी एनओसी जारी कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ बिल्डिंग की सेफ्टी, फायर सेफ्टी को डिफाइन करते हैं। हम ये कभी नहीं देखते डॉक्टर है एक बदमाश है या एक शरीफ इंसान है, वो डॉक्टर का काम है मरीज का इलाज करना। हम पुलिस के पास जाएंगे, वो देखेगा ये बदमाश है या नहीं। हमारा काम जैसे डॉक्टर देखता है कि उसे सही करना है, हमारा काम भी सिंपल है, हमें बिल्डिंगों को सुरक्षित बनाना है, लीगल है या इलीगल। हमें कहीं हमारे एक्ट के अंदर ये व्यवस्था नहीं दी गई कि हमको ये डिफाइन, जब यही चीज हम अपनी एनओसी जो जारी करते हैं उसमें भी लिख के देते हैं। हमको सिर्फ वो 20 पॉइंट्स पूरे चाहिए किसी भी बिल्डिंग, वो इंडस्ट्रियल हो, रेजिडेंशियल हो, मर्केंटाइल हो, कोई हो। जी, Any other question? कानपुर से मिस्टर गगन जी हैं क्या ऑन बोर्ड? एक्चुअली उनकी कुछ दिन पहले भी काफी इस पर चर्चा थी, वो एक लंबी नहीं, चर्चा चाहते थे। वो है नहीं, तो इसलिए उनकी चर्चा मत कीजिए। तो नहीं, अगर देखिए, मैं पहचान नहीं रहा था, मैंने कहा अगर हो तो उनका टेकअप कर लिया जाए। नहीं, वो कल He was रात में so भी keen हमसे to ask डिस्कस something. कि सर हमारे बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो कुछ लोग इतने इंक्विजिटिव होते हैं कि हो सकता है अभी क्वेश्चंस बना रहे हो। देखिए मैं आपको ये बताऊं थोड़ा सा, हमको हमेशा नॉर्म्स पे स्ट्रिक्ट है। हमें अगर हमें एक्ट की, रूल्स की और जानकारी है लॉज की, तो हमको उस पर बहस करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सिर्फ डिस्कस नहीं, अगर आपको पत्राचार भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ, जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे तब तक हमको प्रॉब्लम होती रहेगी। अधिकार बिल्कुल। समझना जरूरी है। और उसके लिए पढ़ना जरूरी है। और हाँ जी, हाँ जी। एनबीसी 16 हम लोगों की मतलब समझ अब तो लीजिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनबीसी 16 में वो सारे फीचर्स उन्होंने कवर किए हैं जो एनबीसी 5 तक नहीं इम्पोर्टेंट समझे गए थे। देखिए तो अभी 2022 एनबीसी आने वाला है, उसके जी लिए जी, आपके सजेशंस भी मांगे जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आप बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट करें, कुछ जी, पॉइंट हमसे लें, क्योंकि कोई चीज भी कभी 100% सही नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम हम, लोग बता दें आपको कि जो कमेटी है, जो उससे हम लोगों का इंटरेक्शन लगातार होता रहता है। और हम लोगों के प्रोग्राम्स में भी उसके लोग आते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड की जो कमेटी है उसके लोग आते हैं, और फीडबैक भी हम लोगों से लेते हैं और हम लोग उनसे फीडबैक लेते हैं। और इसीलिए कुछ चीजें जैसे आपने कहा कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है। मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा थोड़ा सा, मैं कि आप इस तरह का पॉइंट उठाएं कि ये वाटर डिमांड्स जो आई हैं एनबीसी में किस कैलकुलेशन के बेस पे आई हैं, क्योंकि कहीं पूरी एनबीसी में
इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से तो आ गए हैं कि यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए इतना चाहिए, प्रेशराइजेशन ऐसा होना चाहिए, लेकिन फायर डिमांड, फायर के रूप में अगर हम देखें तो वाटर डिमांड की कैलकुलेशन पूरी एनबीसी में कहीं नहीं है। अगर एक जी फ्लोर जी के लिए 5,000 लीटर है तो दूसरी फ्लोर होते ही उसमें 20,000 लीटर हो जाता है। किस बेसिस पे? जबकि वाटर रिक्वायरमेंट भी हमेशा बिल्डिंग के डेंसिटी जो उन्होंने मटेरियल रखा है डेंसिटी एवं उसके कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पे डिसाइड होना चाहिए और पर स्क्वायर मीटर में डिसाइड होना चाहिए, पर स्क्वायर मीटर में। जी जी। और पर स्क्वायर कैलोरी, मीटर में डिसाइड होना चाहिए, ना कि बिल्कुल बिल्कुल। एक हमने 200 मीटर तक 5,000 लीटर और 210 अगर स्क्वायर मीटर हो गया तो 20,000 लीटर हो जाता है। तो 10 स्क्वायर मीटर फालतू होते ही कैसे इतना 15,000 लीटर फालतू हो गया? तो अगर पर स्क्वायर मीटर रहे तो सभी के साथ जस्टिस होगा। कैलकुलेशन इजी होगा सभी के लिए कि हाँ अगर जी, पर हाँ स्क्वायर मीटर है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, एनीबॉडी कैन हाँ। कैलकुलेट कि भाई इसमें 1 लाख का यूजी टैंक चाहिए या 2 लाख लीटर का भाई, चाहिए। अब ये टाइम मेरा आ गया, मानना है इसको सीएफओ हमको साहब बोलना का चाहिए। ये कहना होगा कि वो जो स्लैब उन्होंने डिसाइड कर दी, स्लैब से जो स्लैब के बॉटम एज पे जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे वाटर डिमांड के लिए। ये एक अच्छी बात नहीं है, करेक्ट आपका जी सोचना? नहीं, जी ये इस जी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमारे एनबीसी के जो डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर हेड हैं मिस्टर संजय पंत साहब, तो वो काफी वेल वर्ज हैं हमारी एसोसिएशन से भी, और रहमान सर से और हम सब से उनका एक कनेक्शन रहता है टेक्निकल पॉइंट पे। तो हम लोग आपके इस व्यू पॉइंट को जरूर वहां तक आगे रखेंगे। इसको जरा सा हम लोग भी वर्कआउट कर लेंगे, इस पे क्या चीज, एक कोई भी क्वेश्चन उठाने से पहले एक सजेशन भी साथ होना चाहिए, तो एक सजेस्टिव फॉर्म में हम लोग उनको जरूर भेजेंगे। थैंक यू। और एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे अब जो हमने अब शुरू में भी कहा था कि हम लोग के यहाँ डिफरेंट मटेरियल्स यूज होने लगे हैं ग्लेजिंग में, ग्लेजिंग बिल्डिंग वाले जी एप्लीकेशंस में, और उसमें जी। से कई जो है वो हैजार्डस है बेसिकली, और वो काफी कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में बैन भी हो गए हैं। तो उस पे अभी अपने यहाँ कुछ आया है या हम लोगों को इसको टेकअप करना चाहिए एनबीसी उसके साथ? देखिए एनबीसी में लिखा हुआ है कि करीब करीब 120 मिनट्स का ग्लेजिंग, 30 मिनट्स जी का ग्लेजिंग का जी जो है 30 मिनट्स का फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। जी लेकिन जी। हमारे यहाँ जो ग्लेजिंग लग रही है वो टोटल मुझे लग रहा है 4 से 5 मिनट में ही बहुत खराब है, मतलब बहुत वो खराब एसीपी का क्वालिटी है। वो ग्रेड यूज हो रहा है जो 2.5 mm से भी कम थिकनेस का है, जो कि हाँ, मतलब यूज ही नहीं होना चाहिए। अब लेकिन हम ये लोग चीज यहाँ वही कि ये चीज अथॉरिटी को, किस अथॉरिटी को देखनी है ये डिफाइन नहीं है। कौन देखेगा जी इस चीज? फायर ही डिपार्टमेंट देखेगा, क्योंकि देखिए इसको डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं देख सकती है। नहीं, हमारे अ, पॉइंट्स में उन्होंने दिया नहीं है मिनिमम स्टैंडर्ड्स में। नहीं तो मेरे हिसाब से ये फायर में ही आना होगा, आना क्योंकि चाहिए, मतलब आना चाहिए ये इसका, बिल्कुल आना चाहिए, मैं एग्री कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो भी फायर इसमें नियम में नहीं है। और मैं कह रहा हूँ यहाँ यूपी में ही नहीं, गुजरात में, महाराष्ट्र में ग्लेजिंग के कभी बारे में कोई किसी ने कहीं नहीं, बात नहीं सबसे की। पहले महाराष्ट्र में ही इम्प्रूवमेंट होता है। बेसिकली हम लोग देखते हैं सबसे पहले जी, महाराष्ट्र से सबसे शुरू पहले होता है। महाराष्ट्र या हाँ जी, या उड़ीसा भी होता अच्छा है चल रहा है अभी। जी 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 जी। तो उनके यहाँ बीएमसी और टीएमसी से शुरू होता है, फिर वो बाकी जगह भी फॉलो होता है, बट वहां भी अभी नहीं हुआ है। हम लोग खैर वहां भी काम करते हैं, तो इसको वहां भी टेकअप करेंगे। और एनबीसी एक में जबकि दिया हुआ 30 मिनट्स का है, उसमें मिनिमम जी 30 जी मिनट्स का ग्लेजिंग का रहेगा, फायर जी रेजिस्टेंस होना चाहिए। जी। एक से छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जैसे पहले जमाने में हम, क्योंकि अब हम लोग काफी एजेड हो गए, 35-36 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो शहर में हर जगह फायर हाइड्रेंट्स प्रॉपर दिखते भी थे, वो फंक्शनल भी होते थे, वो देखे भी जाते थे। आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द फायर हाइड्रेंट्स आर इनविजिबल नाउ, मतलब दिखते भी नहीं है। और हमें लगता है कि शायद अब नए एरियाज में फायर हाइड्रेंट्स जो ये बड़े होते थे, सप्लाई पे लगे हुए होते थे, बड़े बड़े लगे होते थे फुटपाथ्स वगैरह पे, और अभी जो कानपुर में हमने आपको बताया था कि 6 बड़ी मार्केट जल गई, 2 दिन आग लगी रही, तो 7 फायर स्टेशन में, 6 फायर स्टेशन में ही पानी मिल पाया, 1 फायर स्टेशन में पानी मिल पाया। और जो मॉल थे कानपुर में उनसे कम से कम पानी मिला, जिससे बुझाने का काम किया गया। तो क्या ऐसा कुछ फायर डिपार्टमेंट अपने जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के फायर हाइड्रेंट पॉइंट्स होते थे सिविल बेसिकली प्लेसेस पे, उसको, और जो जहां जहां यूजी अंडरग्राउंड बड़ी टैंक फैसिलिटी है, उनका कुछ मॉनिटरिंग करता है? मॉनिटरिंग करता है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिकल देखें
तो मुझे नहीं लगता ये उस टाइम की बात थी जब हम बिल्डिंग्स में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम डिजाइन नहीं होते थे। जी जी जब हम बिल्डिंगों में फायर प्रोटेक्शन डिजाइन करा रहे हैं तो अलग से हम एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और टैक्स पेयर्स का पैसा फिर से और जी। ज्यादा खर्च करें। मुझे नहीं लगता कि डबल डबल पैसा हमें खर्च करना चाहिए। सर हम सिर्फ जब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी जो हमने बताया ना कि 2 दिन कानपुर में एक आग लगी रही, कानपुर के बाहर से भी फायर इंजन आए आए और आए जी उस वक्त कहीं भी मतलब 7 फायर स्टेशन नियर बाय थे, उन 7 में से सिर्फ एक में पानी का अरेंजमेंट था। नहीं, तो फायर स्टेशन पे नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, फायर स्टेशन पे कभी पानी का अरेंजमेंट ज्यादा आपको नहीं नहीं, मिलेगा जो कहीं। एक जनरल वाटर सप्लाई डिजाइन होती थी पहले, हमेशा पहले जो होती वाटर थी सप्लाई जी। सिस्टम होती थी उसमें फायर हाइड्रेंट्स बड़े बड़े लगे होते थे। तो क्या ऐसा नहीं इस केस के बाद ऐसा नहीं लगता है कि उसको फिर से करना चाहिए कि एटलीस्ट शहर में 25 जगह पे जो देखिए, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। आप ये देखें, बहुत प्रैक्टिकल इश्यू है ये। क्या फायर हाइडेंट होने से ही फायर फाइटिंग हो सकती है? गाड़ी वहां पे प्रॉब्लम हुई कि गाड़ी देर से पहुंची, या उन्होंने फायर फाइटिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत बहुत बड़ी सीट 6 सीट ऑफ मार्केट तक सीट ऑफ तक फायर में जाना ही नहीं हुआ। भाई 10 मिनट के बाद तो फायर डिपार्टमेंट का 20 गाड़ियां हैं, वो कहीं ना कहीं से पानी लाके बिल्डिंगों से वो जी जी वाटर सप्लाई तो कंटिन्यू रहेगी। बात है मैनुअल और ऑटोमेटिक सिस्टम की। जी जी देखिए, मैनुअल सिस्टम वर्क करना जैसे जैसे वो हर किसी के बस की नहीं है मैनुअल। ऑटोमेटिक सिस्टम जहां होगा वहां वो फायर फाइटिंग अच्छी हो पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें बिल्डिंग सेफ्टी पर डिजाइन पे ध्यान देना है, जी बिल्डिंग की जी फायर प्रोटेक्शन पे ध्यान देना। अगर बिल्डिंग में ही वो फायर प्रोटेक्शन हो, अगर चांदनी चौक में क्या आग लग जाए, गाड़ी भी नहीं पहुंचती वहां जी जी तो बात वो नहीं है कि को कितना कंजेस्टेड है, गाड़ी पहुंचना है। मैं कहता हूँ सिर्फ हाइडेंट सिस्टम अगर लगाने हैं तो जो कंजेस्टेड यहाँ गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है वहां जरूरी है आज की डेट में। जैसे दिल्ली में अगर देखा जाए तो जामा मस्जिद और चांदनी चौक में हाइडेंट सिस्टम लगाए गए हैं अब, और 2 लाख लीटर का एक कॉमन वाटर टैंक पंप्स के साथ, और हर जगह हॉजेस और ब्रांचेस रखे हुए हैं। क्या वो गाड़ी लेके जाएंगे 200 मीटर खड़ी कर दी, 300 मीटर पहले गाड़ी, फिर आगे अंदर जा पाए, फिर फायरमैन क्या करेगा, सिर्फ ब्रांच और हॉज लेके जाएगा और हाइडेंट से पानी लेके उस आग वहीं बुझा लेगा, क्योंकि वहां जाने के लिए सिर्फ एक साइकिल का रास्ता है। तो वाटर सप्लाई हाइडेंट से हो गई। लेकिन जहां हमारी चौड़ी रोड्स हैं ऑलरेडी अच्छी हैं, पहले से ही हम लोगों ने आज के अंदर रोड के अंदर गैस लाइन दे दी है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन दे दी है। फिर दूसरा ये है कि फ्रेश वाटर यूज करना, जैसे जैसे वाटर की स्कार्सिटी बढ़ती जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि अब हमको इसका अल्टरनेट ढूंढना चाहिए वाटर का, कि कम से कम यूज कैसे हो सके इसका। जी क्योंकि आज गंगा वाटर हमें सप्लाई करना पड़ रहा है, और अगर इस तरह से हम पानी को यूज करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा दिन इस पे सरवाइव कर पाएंगे वाटर बेस पे। हमें तो प्रिवेंशन पार्ट पे आना ही पड़ेगा, प्रिवेंटिव पार्ट्स पे, कि आग लगे ही ना। हमें डिजाइन करना है इस हिसाब से कि आग ही ना लगे। एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, जब हम कहते हैं कि अर्थक्वेक, हम लोग वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द अर्थक्वेक। जापान में लोग बच्चे जो हैं उसके नीचे घुस जाते हैं, जैसे ही बेल बजी टेबल के नीचे चले जाएंगे। लेकिन क्या इंडिया में एप्लीकेबल है ये चीज? क्या कोई भी स्कूल इंडिया का अर्थक्वेक के लिए डिजाइंड है? वहां हमारी टेबल्स तो फिक्स नहीं है। हमारी तो जो कमरे के अंदर टेबल्स हैं, अलमारीज हैं, सब ऐसी रखी हुई हैं। जापान में तो फिक्स होती है हर चीज कि सर भाई उसका आज के रीजन फिर नहीं। उसका रीजन ये है, कहते नहीं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उनके यहाँ अर्थक्वेक प्रोन देखिए, बहुत हैं और तभी उनके यहाँ अर्थक्वेक रोज आ रहा है। अगर तो हमने गलत नॉलेज दे दी बच्चों को कह दिया जी बच्चे अर्थक्वेक आया, आपको अपने स्कूल में डेस्क के नीचे घुसना है, तो हमारा बच्चा तो ऑलरेडी इंजर्ड हो जाएगा। जी 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 तो हमें कॉपी पेस्ट भी समझदारी से करना है, समझदारी से करना है, कॉपी बिल्कुल। पेस्ट नहीं होना चाहिए। जी हमें जी अपने सिस्टम को खुद डिजाइन अपने अकॉर्डिंग बनाना है। अपने हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने डिजाइन कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ कोई एक रिसर्च का कॉलेज है फायर के अंदर? कितनी वाटर डिमांड हम दे रहे हैं? नॉट ए सिंगल कॉलेज इज देयर। जी जी कोई साइंटिस्ट नहीं है। और हमने कहाँ के नॉर्म्स लिए सारे?
यूरोप में तो घर कब लकड़ी के घर बनते हैं, उनका फ्लेमिटी रेशियो ज्यादा है, बहुत फास्ट रेस्पॉन्स है उनका, आग लगने का 10 मिनट में पूरा घर जल जाता है। हमारे यहाँ तो कंक्रीट की दीवार है, जी। तो हमारे यहाँ पे तो डिजाइन लेवल अलग होना चाहिए ना। हाँ सर, हमारे यहाँ भी अर्थक्वेक पे बेसिकली क्या है कि जो जोन 4 और जोन 5 है, जो ज्यादा एक्टिव जोन है, जिसमें आपका उत्तराखंड से लेके और ये पूरा बेल्ट जाती है दिल्ली नेपाल और तक, नोएडा सब जोन 4 में ही आ रहा है। आ रहे हैं, बट उनका मैग्नीट्यूड वो नहीं है जो हाँ। जापान होता है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे 5 का होता है, 6 के ऊपर नहीं होता है। अपने ऐसा नहीं कि अर्थक्वेक अभी भी ऐसी चीज है कि वो प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती है सर अभी। फायर के सवाल रह गए हैं अभी, एनआईडीएम छोड़ो, तो नहीं वो डिजास्टर बात से मैनेजमेंट बात छोड़ो, निकलती फायर है, के सवाल रह गए। बात निकलती है। आप देर से आए हैं तो नहीं हम तो शुरू से हैं। अच्छा, शुरू से, सवाल वेरी गुड। सवाल अब लेके आए हैं अजीत भाई। नहीं मैं तो वेट कर रहा था, मैंने कहा सब कंक्लूड हो जाए। सर मेरे नहीं। दो तीन क्वेरीज थी। जी बताइए। एक तो होता क्या है कि जितनी भी हाई राइज इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसा आपने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने, कि जहां तक आदमी पहुंच पाता है, ऑक्यूपेंसी होती है, वर्कलोड होता है, वर्कर्स लोड होता है, वहां तक आप उसकी हाइट कंसीडर करते हैं। लेकिन अब एक 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ का आदमी कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, वहां पे इवोपरेटर्स, ड्रायर्स, कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जो 32-33 मीटर तक जाते हैं, लेकिन नॉर्मली उनकी एनओसी आज भी 18 मीटर की ही मिलती है। उसमें हाइट जो मेंशन की जाती है, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट के पास, जहां तक मेरी जानकारी है, 18 मीटर से ऊपर इंडस्ट्री पास करने का कोई रूलिंग और नॉर्म नहीं है। ये इसके लिए बताया कुछ प्रयास किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? पहला सवाल है मेरा ये। दूसरा सवाल मेरा ये है, इसी 18 मीटर से रिलेटेड है, कि जब यूपी सीडा इतनी एग्रेसिव होकर के आज की तारीख में जो 0.75 का एफआर देती थी, आज वो 2.5 का एफआर पे लैंड अलॉट करने को तैयार है और 3.5 के एफआर तक जाने की बात कर रही है। ऐसे केस में मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रीज इज द फ्यूचर। अब ऐसा नहीं होगा कि बिल्डिंग एनवेलप नीचे रह गया और ऊपर खाली जगह जा रही है। अब तो काम 6-6 मंजिलों 7-7 मंजिल की इंडस्ट्रीज वर्किंग बनेंगी। ऐसे में 18 मीटर के नॉर्म से कैसे काम चलेगा? इसके लिए कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोएक्टिवली एफर्ट्स हो रहे हैं या कुछ चेंज इन लाइन है? देखिए, जो मैं पहले बताया, प्रोसेस बिल्डिंग्स को हम लोग हाइट में कंसीडर नहीं करते हैं। आपने ड्रायर्स की बात की, फ्रैक्शनेटिंग टावर्स की बात की, या हीटर्स की बात की, उनको हम बिल्डिंग्स में कंसीडर नहीं करते। सर मैं तो फ्लैटेड फैक्ट्री की बात करूं तो हम तो 6-6 मंजिल की फ्लैटेड फैक्ट्रीज बना रहे हैं 4.5 मीटर की, वो हमें 18 मीटर करनी पड़ी क्योंकि फायर के पास कोई नॉर्म्स ही नहीं है। फायर डिपार्टमेंट के पास 18 मीटर वो फायर डिपार्टमेंट नहीं उसको वो कर रहा है, ये एनबीसी उसको वो कर रही है। एनबीसी नहीं लिखा हुआ कि 18 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग नहीं बनेगी। उसका मतलब है इसको भी टेकअप करने की जरूरत पड़ेगी। ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड पे बिल्डिंग्स को देखा जाता है, जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन मतलब 24 घंटे रह रहा है, उन्हीं बिल्डिंग, जबकि इस तरह की बिल्डिंग्स अगर देखा जाए तो फ्लोर वाइज देखा, नोएडा में है कि फर्स्ट फ्लोर पे उनका कुछ सिलाई का काम है, सेकंड फ्लोर पे टॉयज है, थर्ड फ्लोर पे कुछ और है। इंडस्ट्रीज बन रही है सर हर जगह। हाँ, लेकिन वो 18 मीटर से नहीं है, वो नेशनल बिल्डिंग कोड नहीं, उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। नेशनल बिल्डिंग कोड में ही हमको टेकअप करना पड़ेगा। ओके। तो एक पॉइंट ये एडवाइजरी का हम लोग इसको अपने उस पर रख सकते हैं और एक एडवाइजरी नोट में ये लिख सकते हैं, बीआईएस को रेफर कर सकते हैं हम लोग। हाँ, एक्सेप्शंस देने के लिए, क्योंकि वर्टिकल डेवलपमेंट हो रहा है और इन एब्सेंस ऑफ नॉर्म फिर जो चीज होगी उसके लिए कोई अगर वो देखिए, अडेंडम लाए कुछ। पहले हॉस्पिटल्स में 45 मीटर था 2005 में, कि हॉस्पिटल सिर्फ 45 मीटर तक बन सकते हैं। अब जो नॉर्म्स आए 2016 में एनबी नेशनल बिल्डिंग कोड में, वो 60 मीटर हो गया, लेकिन उन्होंने कहा 45 मीटर तक हॉस्पिटल, एंड जो उसकी 15 मीटर ऊपर होगा वो रेजिडेंशियल होगा, किसी अन्य पर्पज से होगा, हॉस्पिटल नहीं होगा। तो 60 में एक तरह से हॉस्पिटल 60 मीटर हो गया, लेकिन 15 मीटर का जो ऊपर का पार्ट है वो हॉस्पिटल नहीं होगा। तो उसके एडिशनल होते रहते हैं जी। तो इस तरह के रिलैक्सेशन जो है वो इंडस्ट्रियल में भी, क्योंकि ये सही बात है कि अगर आप प्लॉट का एरिया देखिए और 3.5 FAR देखिए,
तो सेटबैक्स के बाद अगर आदमी 2.5 FAR ले रहा है, एक परचेज कर रहा है, तो हाइट तो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। हाइट बढ़ेगी। हाँ पर जी। अभी की डेट में कहीं पर भी यूपी के जी। अंदर तो क्या, कहीं पूरे इंडिया में भी 18 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग अलाउड नहीं है जी, इंडस्ट्री। श्री रहमान भाई, अब तो फ्लैटेड के केस में मिक्स लैंड यूज अलाउ कर दिया है। 20% कमर्शियल होगा, रेजिडेंशियल भी हो सकता है उसमें, और रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल। हो सकता है। तो उसमें अगर रेजिडेंशियल लेके जाते हो तो वो कितना ही बनेगा, रेजिडेंशियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इंडस्ट्रियल पार्ट जो होगा इंडस्ट्रीज के अंदर, वो उन्होंने 18 मीटर से सर ऊपर। आपके यहाँ जो नक्शा जाता है ना, उसमें अगर हाइट दिखा देंगे, भले ही वो रेजिडेंशियल की है, तो जो आप समझदारी की बात कर रहे हैं ना कि हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो कहेंगे इसको आप कम करके दिखाओ, हमारा नक्शा नहीं गलत हो नहीं, जाता है। ना 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 ना, देखिए यूसेज जो है हमारा आपको फायर डिपार्टमेंट की आपको बताएं, हर बिल्डिंग, एक इंडस्ट्री में 10 तरह की बिल्डिंग्स हैं। अगर उनका कोई ऑफिस बिल्डिंग है तो ऑफिस में ही काउंट होगी, अगर वो स्टोरेज है तो स्टोरेज में काउंट होगी, इंडस्ट्रियल पार्ट है तो इंडस्ट्रियल पार्ट में काउंट होगा। अच्छा इस सर, तरह की आपने एक चीज और कही थी कि वाटर कैलकुलेशन नहीं है। अगर जी। वाटर कैलकुलेशन नहीं है तो जो कंसेंट मिलती है फायर की, वो एनबीसी से बहुत बहुत ऊपर चली जाती है। मेरे अभी 2 प्रोजेक्ट में 4.5 लाख लीटर का टैंक मांग लिया, किसी में 7.5 लाख लीटर का। वो कैलकुलेशंस किस बेसिस पे करते हैं? नहीं, कोई ये मुझे नहीं लगता किसी ने लिख के दिया होगा, क्योंकि सर एनबीसी दिया में हुआ है मेरे पास, डॉक्यूमेंटेड है। 2 लाख लीटर से ऊपर का कोई मांगेगा ही नहीं। 4.5 लाख डॉक्यूमेंटेड है सर मेरे पास। तो पता नहीं, उन ये तो पूछना पड़ेगा, आप पूछिए जरा कहाँ से आया है ये। मैं बताता हूँ सर कहाँ से आया है। जी जी जी। हेलो, हाँ जी हाँ हाँ जी बताइए बताइए। प्रदीप बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी। ये जो स्पेसिफिक कोड्स है ना हाइड्रेंट के और स्प्रिंकलर सिस्टम वाले, हाँ हाँ। उनमें दिया हुआ है सारा। उनके हिसाब से जब भी करते हैं तो 7-8 लाख लीटर ही आता है। नहीं हम नहीं लोग नहीं, काफी मैं नहीं, हम लोग पता कई नहीं क्या। कर रहे हैं बड़े बड़े, हम्म उनमें ऐसा ही हो रहा है। बल्कि हमने एक बिल्डिंग तो ऐसी की है, जैसे आपकी 45 मीटर की ट्रेवल डिस्टेंस है, हम्म उसमें वो जो बिल्डिंग की टोटल वेट थी वो हमारी करीब 117 मीटर है। तो कहीं पे भी पहुंच जाए उसको 45 से ज़्यादा चलेगा। हम्म तो उसमें हमने फिर एक हॉरिजॉन्टल टनल डेवलप की ग्राउंड फ्लोर पे, हम्म जिसमें जाके और सीधा बाहर निकल जाएगा। हम्म। अच्छा, वो और जो कहीं से कनेक्ट नहीं है किसी और वो चीज से? वो सिर्फ एंट्रेंसेज हैं उसमें। हाँ और हाँ लंबाई में बिल्डिंग करीब हमारी 250 मीटर थी, हाँ हाँ तो 250 मीटर लेंथ की पूरी वो एक टनल टाइप की। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। और इसमें ये जो कैपेसिटी निकालने का सिस्टम है वो हाइड्रेंट और उसकी पंपिंग कैपेसिटी से बेस्ड है। जैसे मान पर लीजिए इस आप छोटा सा 15 मीटर में होज रील की बात करते हैं, तो होज रील की हम्म कैपेसिटी 450 लीटर पर मिनट में लेते हैं ये लोग। 180 LPM। 180 तो सर वो जॉकी पंप का है। हाँ नहीं, हॉजरील का कह रहा हूँ मैं, हॉजरील तो 180 LPM में हाँ, आती है। तो वो उसमें 2 या 3 से ज्यादा एट ए टाइम नहीं चल सकती, देखिए, इसलिए मैं भी। रिफाइनरी में रहा हूँ, मैं अपना बता दूं, जी सर। वाटर कैलकुलेशंस जो है OISD 116 के अनुसार होती हैं, और किसी रिफाइनरी में भी कोई मैक्सिमम जो हजार्डस एरिया, एक ही हजार्डस एरिया को हम कवर करते हैं अधिकतर, टैंक फॉर्म एरिया को। और टैंक फॉर्म एरिया में जो 4 मॉनिटर्स, 3 उसकी स्ट्रीम्स, हॉज स्ट्रीम्स, और कूलिंग सिस्टम का ही हम लोग वो रखते हैं डिजाइन में। और वाटर डिमांड मुश्किल से 3.5 लाख 4 लाख रुपए, 4 लाख लीटर के करीब आती है, रिफाइनरीज की बात कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता नेशनल बिल्डिंग कोड में तो रिफाइनरी में, इसलिए कि रिफाइनरीज अलग एक्ट में आती है, पेट्रोलियम रूल्स में आता है, इस वजह से OISD वहां लागू होती है, तो उसका डिजाइन अलग है। लेकिन अगर जैसी इंडस्ट्री यहाँ पर है हमारे यहाँ पे, इसमें तो मैक्सिमम 1.5 लाख लीटर जो मैं देख रहा हूँ नेशनल बिल्डिंग कोड में, मैक्सिमम 1.5 लाख लीटर, और टेरिस टैंक 20,000 लीटर। उसमें से 2 लाख लीटर का 2 आवर्स का पंपिंग कैपेसिटी चाहिए हमको। वो वो OISD के तो अकॉर्डिंग वो है। तो अगर हमारा पंप है 2270 लीटर का, तो उसके हिसाब से जब करेंगे तो नहीं आती है। नहीं, अगर आप हजार्डस देखें ना, हजार्डस इंडस्ट्री में भी, हजार्डस बिल्डिंग है अगर कोई आपकी मोर देन 1 फ्लोर की 15 मीटर से कम, उसमें भी 240 मिनट्स के फायर फाइटिंग में है। और वो आपने कैसे डिजाइन किया ये तो आपके ऊपर है, कितना वो तो वाटर एक किसी एक एरिया को लेके ही तो डिजाइन करेंगे आप। मोस्ट हजार्डस एरिया देख लीजिए अपना, उसमें क्या सिस्टम लग रहा है, उसकी वाटर डिमांड देख लीजिए, हाँ और वो 65 मिनट्स का मैक्सिमम है।
अगर OISD भी देखें तो 65 मिनट्स का मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए सर। सर ये जो अगर आप हाइड्रेंट का कोड देखेंगे 13039 उसमें लाइट हजार्ड के लिए 2 आवर्स की है और हाई हजार्ड के लिए 4 आवर्स की रेटिंग है। 4 आवर्स की कैपेसिटी चाहिए। पर किस इंडस्ट्री के लिए? तो फिर वो नेशनल बिल्डिंग हाइट, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स और हाइट से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। PIS के लिए कहीं नहीं लिखा है हमारे यहाँ लिखा है नेशनल बिल्डिंग कोड को फॉलो करना है आपको, नेशनल बिल्डिंग कोड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो NBC को फॉलो करना है नया। अब कोई आपको कह दे कि UN स्टैंडर्ड के हिसाब से चलिए आप, तो UN स्टैंडर्ड थोड़ी हम लेके हमें तो नेशनल बिल्डिंग कोड दिया है, उन्हें फिक्स डिमांड दे दी उन्होंने 1.5 लाख लीटर का टैंक 20,000 का, अब 1,70,000 हो गया टोटल मिला के, उसके अकॉर्डिंग। कभी कभी वाटर डिमांड के अलावा कुछ और डिमांड बनाने के लिए वाटर डिमांड रख दी जाती है। हाँ, जो भी ऐसा हो सकता है। कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर आ जाती, समझिए। केस टू केस जो है। आप कोई स्पेसिफिक केस है कहीं का जो आप मुझे बता रहे हैं 4 लाख लीटर का, कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे तो हम भी उसे रेफर कर लेंगे कहाँ क्या है, कैसे हुआ है वो। आप अलग से मुझे भेज सकते हैं वो, मैं भी देख लूंगा कैसे किया उन्होंने ये चीज। ठीक है सर, हम क्या करेंगे कि आपको हमको भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। आई थिंक बहुत अच्छा डिस्कशन था और बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन था। और मेरे ख्याल से ये किसी के माइक से बहुत आवाज आ रही है तो उसको प्लीज म्यूट कर लें। और विवेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत प्रैक्टिकल डिस्कशन था और एक डिस्कशंस एकेडमिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और दोनों का मिक्स जो है वो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होता है। तो ये आई थिंक इट वाज क्वाइट एकेडमिक एज वेल एज से प्रैक्टिकल। तो सभी लोगों को डिस्कशन से कुछ ना कुछ मिला। और जो बात आपने कही कि जो कुछ इश्यूज हैं जिनको हम लोगों को टेकअप करना चाहिए एनबीसी के साथ, एनबीसी कमेटी के साथ, वो डेफिनेटली हम लोग टेकअप करेंगे एंड विल कीप यू अपडेटेड ऑल्सो। क्योंकि हर बार जब एनबीसी आती है उससे पहले बहुत डेलिब्रेशंस होते हैं और नो डाउट हम लोगों की नेशनल बिल्डिंग कोड वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्स में होता है इन द वर्ल्ड। इसमें कोई वो नहीं है कि क्योंकि हम लोगों को ये भी पता है कि हम लोगों के नेशनल बिल्डिंग कोड को कई कंट्रीज इन टोटो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि वो अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेके। तो हम सब लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए मैक्सिमम, जिससे कि जो हमारी क्वेरीज हैं या जो हर्डल्स हैं या जो बॉटलनेक्स हैं वो नेक्स्ट एनबीसी में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। और आपने पेशेंटली बड़ा सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया, तो एपीजीसी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एपीजीसी के तमाम मेंबर्स जिन्होंने वर्कशॉप को अटेंड किया उनके लिए ये फ्रूटफुल रहा होगा। और हम लोग नेक्स्ट मंथ अपनी जो टेक्निकल वेबिनार करेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि उस वेबिनार में अपने पुराने गेस्ट स्पीकर्स को भी इनवाइट करें। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने जियो टेक्निकल पे किया था, इस बार फायर फाइटिंग पे था, फायर सेफ्टी प्लानिंग पे था। नेक्स्ट होपफुली हम लोग स्ट्रक्चरल डिटेलिंग पे करेंगे, जैसे अभी डॉक्टर रजत खरे ने इशू उठाया था कि फायर सेफ्टी के लिए कवर्स ज़्यादा होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का काम है कि वो नेसेसरी कवर्स प्रोवाइड करें जो सर्टेन टाइम जो हम लोग कहा गया है उतने टाइम के लिए वो फायर रेजिस्ट कर पाए। और क्योंकि डॉक्टर रजत भी कानपुर से हैं और हम लोग के यहाँ भी वो 6